Ignited Minds Tutorials recently released a video on the topic of measurement and effects of heat for Class 8 students of Maharashtra State Board. In this comprehensive science lesson, various aspects of heat and its impact are explored. The video begins by discussing the concept of temperature and its measurement through thermometers, explaining how different units like Celsius and Fahrenheit are used. The next section focuses on the expansion and contraction of materials due to heat, providing examples and real-life applications. Moving further, the video covers the topics of thermal expansion and its importance in daily life, such as in the construction of bridges and railways. The effects of heat on different substances, including solids, liquids, and gases, are also explained, highlighting the changes in their physical properties. Moreover, the video delves into the concept of the transfer of heat through conduction, convection, and radiation. These methods are elucidated with practical examples like the heating of water, cooking, and the functioning of a refrigerator. The tutorial concludes by emphasizing on the significance of understanding heat and its effects in our lives. It encourages students to apply this knowledge to everyday situations and be aware of the impact of heat on materials and substances. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive explanation of the measurement and effects of heat topic for class. Okay, people, we will start with this new chapter in 8th standard, that is measurement and effects of heat. तो heat basically क्या है बोलो people? Heat is a form of energy. ठीक है, heat आपका है क्या? Heat is a form of energy. ये भाई साहब एक एनर्जी है, ठीक है, और ये हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? Heat always flows from a body with higher temperature to a body with lower temperature. ठीक है, सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट हमेशा एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखो यहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से एक बॉडी ए है, लेट्स से दिस इज अ बॉडी ए और ये बॉडी बी, ठीक है. इसका टेम्परेचर लेट्स से है आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर क्या है भाई साहब? लेट्स से 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी क्या होगा? हीट इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो होगी. कब तक होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. सो अप्रोक्सीमेटली दोनों का टेम्परेचर सेम कब हो जाएगा? 90 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0. 9 प्लस 4 13 बाई 2, सो दैट विल बी हाउ मच? 65 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एक फाइनल टेम्परेचर दोनों क्या अटेंड कर लेंगे? 65 डिग्री सेंटीग्रेड. हालांकि हमको ये अजम करना है कि भाई साहब बाहर कोई हीट ना जा रहा हो, ठीक है. अगर हमने कोई बाहर हीट जाने नहीं दिया तो इस बॉडी से इस बॉडी तक तब तक हीट फ्लो करेगा जब तक दोनों का सेम टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है. तो जब देखो टोटल टेम्परेचर कितना है भाई साहब? 130, और यही 130 का टेम्परेचर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जैसे ही ये दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे हीट फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है. तो हीट फ्लो के प्रिंसिपल्स क्या है? तो हीट भाई साहब बेसिकली आपका क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये हो गया पहली बात, है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दूसरी बात क्या है? it always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature, ठीक है, at lower temperature. मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट से ये बेसिकली कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगा, ठीक है. सो दिस विल बी हॉटर ऑब्जेक्ट से हमेशा हीट क्या होगा? इट विल फ्लो टूवर्ड्स कोल्डर ऑब्जेक्ट. सो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. और तीसरा कब होगा? द हीट
flow will continue, the heat flow will continue till both the bodies attain the same temperature, till both the bodies attain the same टेम्परेचर। ये हीट फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज में सेम टेम्परेचर ना हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर सेम हो गया, ठीक है, वंस बोथ द बॉडीज अटेन सेम टेम्परेचर, वंस बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर, हीट फ्लो स्टॉप्स। सो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? हीट फ्लो विल स्टॉप, हीट फ्लो स्टॉप्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, हीट फ्लो आपका पूरा पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ लॉन्ग विल दिस हीट फ्लो हैपन? टिल बोथ ऑफ देम अटेन द सेम टेम्परेचर। एक बार दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाए तो फिर से हीट फ्लो नहीं होगा, देन देयर विल बी नो लॉन्गर एनी हीट फ्लो। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। So we have seen in previous standards that heat is a form of energy. ये भाई साहब क्या है? heat होता क्या है? It's a form of energy which flows from an object at higher temperature to an object at a lower temperature. जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी आपका हीट फ्लो होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपने अभी कभी खाना खाया था? हाँ जी, कभी खाना खाया था? कितने बजे? 2:30 बजे, 1:30 बजे। उसके बाद नहीं खाया था? ओके, तो कब तक आप बिना खाए रह सकते हैं? अभी घर जाके खाएंगे, है ना? कितने बजे खाएंगे? अरे पूछ रहा हूँ ऐसे ही। हाँ, 10 बजे तक खाएंगे। ओके, अगर मम्मी ने खाना नहीं दिया तो? पूछ रहा हूँ क्या होगा? नहीं, आज खाना नहीं मिलेगा। परेशान हो जाएंगे आप? क्यों परेशान हो जाएंगे? वाई? हाँ, क्या? खाना नहीं मिलेगा तो परेशान क्यों हो जाएंगे? आप नहीं परेशान होंगे तो आपका बॉडी परेशान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी और आपका ये जो बॉडी है, एक एनवायरनमेंट है हमारा, एयर है ना। एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे अभी आपने क्या बोला? ये देखो, समझ लो, ये दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू, और आपका जो टेम्परेचर है, ये जो सराउंडिंग एयर है, इससे भाई साहब आपका टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कंटिन्यूअस आपके बॉडी से हीट एनवायरनमेंट को जा रही है, तो आपके बॉडी से कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी टू द एनवायरनमेंट। और अगर आपने खाना नहीं खाया तो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगा? क्योंकि एनर्जी हमेशा माइनस होती रहेगी आपके बॉडी का। आप अगर बिस्तर पे भी लेटे होंगे ना, अभी तो आप भाई साहब स्कूल गए हैं, फिर थोड़ा खेले कूदे हैं, फिर भाई साहब यहाँ पे आए हैं, तो आपका एनर्जी जा रहा है। अगर आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो भी आपको भूख लगेगी नहीं लगेगी? 6-7 घंटे बाद फिर भी, मतलब आपकी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, फिर भी आपको भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपके बॉडी से एनर्जी का लॉस होना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके वजह से आपको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब 4-5 घंटे बाद तो आपको भूख लगना ही लगना है। आपका गला सूख जाएगा भाई साहब, आपको खाना ही पड़ेगा। यू विल गेट मतलब ऐसा लगेगा कि भाई पेट फट जा रहा है, ऐसा है ना। तो क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो कहां से एनर्जी लॉस हो रहा है। आप सोए पड़े हैं तो भी आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। ब्रेकफास्ट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके बॉडी जब है, आप जब सो रहे थे तो उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। लेकिन क्या हीट लॉस नहीं हुआ है भाई साहब उस टाइम पे भी। तो द मोमेंट यू वेक अप यू हैव योर ब्रेकफास्ट, है ना। तो इसी तरह से हमारा बॉडी भी है भाई साहब। बॉडी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस एनर्जी। आपने देखा है कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हाइबरनेशन मोड पे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइबरनेशन? वो मतलब सॉइल के नीचे गड्ढा खोद के भाई साहब चले जाते हैं। सांप हो गया, ठीक है, सांप जो है तो ऐसा पड़ा रहेगा 1-1.5 महीने तक बिना खाए हुए। क्यों? ऐसा क्यों? वो कैसे रह सकता, हम क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सांप इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, हम जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय
अस बीइंग वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, जिनके बॉडी का टेम्परेचर भाई साहब सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा हो, उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, उनको हम वार्म, तो हमारा भाई साहब वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम कभी भी हाइबरनेशन मोड में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की खासियत ये है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने सराउंडिंग के साथ रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब सांप जो है वो क्या करेगा, जब हाइबरनेशन मोड में जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। सांप जब हाइबरनेशन मोड में जाता है तो वो क्या करता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेता है। अभी क्या उसके, अगर सांप के बॉडी का टेम्परेचर और जमीन के अंदर का टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या उसके बॉडी से लॉस होगा हीट? नहीं होगा भाई साहब। अगर बॉडी से हीट लॉस नहीं होगा तो क्या उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा खासा वो 4-5 चूहे खा के बिल के अंदर चला जाएगा और 1.5 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा। दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन मोड। इसीलिए आप देखोगे भाई साहब जब बारिश होती है तो सांप निकलते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। दैट्स व्हेन दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे देयर, ठीक है। तो आपका इसीलिए हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ये फ्लक्चुएशन होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन एक्चुअली एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर along with the temperature outside, because of which they will not be in a loss of their heat energy। उनके बॉडी से हीट एनर्जी नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो उनको भाई साहब हीट की जरूरत नहीं है। अगर हीट की जरूरत नहीं तो खाने पीने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। That's how they can afford to stay without food for maybe a month or more than a month, because they have gone in a hibernation mode. In this hibernation mode, what they have done is they have regulated their body temperature in such a way that their body temperature and the surrounding temperature have become equal, because of which there is no loss of heat energy from their body. They are able to save on their energy. Clear? Okay. Temperature of an object tells us how hot or cold that object is. आप भाई साहब जब किसी चीज को, एक चाय की प्याली को भाई साहब बोल रहे हैं गर्म है, ठीक है, और बर्फ के टुकड़े को बोल रहे हैं ये ठंडा है, कैसे बोल रहे हैं, मतलब क्या है, गर्म ठंडा तो समझ में आया, लेकिन किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है इसका टेम्परेचर, और ये भाई साहब नॉर्मल टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं ना भाई साहब, यू आर कंपेयरिंग विद समथिंग। तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब अरे ये इंसान का हाइट क्या है रे भाई, तो इसका मतलब जो नॉर्मल इंसान है उससे इसका हाइट ज्यादा है ना। अरे ये तो कितना पतला है, ऐसा अगर बोले हम तो एकदम टुन्नू सा है ये, ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल इंसान से इसकी हाइट कम है। आप किसी चीज को जब बोल रहे हैं तो किसी चीज के साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं। सो अगर आप किसी चीज को गर्म बोल रहे हैं या किसी चीज को ठंडा बोल रहे हैं तो एक टेम्परेचर को मीडियम रख रहे हैं, ठीक है। इज लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। दस द टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ टी, ठीक है। आइसक्रीम का टेम्परेचर भाई साहब आपके टी के टेम्परेचर से लेस देन होता है। वी हैव आल्सो सीन दैट व्हेन वी गिव हीट टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सपैंड्स एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू हीट, ठीक है। तो जब आप भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, ठीक है, इट एक्सपैंड्स एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू हीट। द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट क्या है भाई साहब? जूल्स। हम इसको कैपिटल जे लिखते हैं, ठीक है। सो वन, और सीजीएस सिस्टम में क्या है? कैलोरी, ठीक है। ये एसआई सिस्टम क्या होता है भाई साहब? एसआई होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। एसआई इज बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में भाई साहब आपका यूनिट क्या होता है? एसआई सिस्टम है, ठीक है। सो इसमें आपका हीट का एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज जूल्स। ये हो जाएगा भाई साहब जूल्स, ठीक है। क्लियर है? एसआई सिस्टम में। और अगर सीजीएस सिस्टम में हम देखेंगे, सीजीएस मतलब कुछ नहीं है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, ठीक है, एंड एस फॉर सेकेंड्स, ठीक है। ये होता है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में भाई साहब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? द यूनिट इन सीजीएस सिस्टम इज कैलोरी। इसका यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा? द यूनिट इन सीजीएस सिस्टम इज कैलोरी। द यूनिट इन एसआई सिस्टम फॉर हीट इज जूल्स एंड द यूनिट इन सीजीएस सिस्टम इज कैलोरी, ठीक है। ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 जूल्स। तो ये वाला आप लिख लीजिए भाई साहब, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, ठीक है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 जूल्स।
1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये कैलोरी होती क्या है, तो एक कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट required, 1 calorie is basically the amount of heat required to raise the temperature of, ठीक है, to raise the temperature of 1 gram of water, to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो समझ लो भाई साहब आपका 1 ग्राम वाटर आपने लिया हुआ है किसी बीकर में, ये क्लोज्ड है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 ग्राम वाटर लिया हुआ है और इसको आप हीट कर रहे हैं। तो लेट्स से इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर आपने थर्मोमीटर में मेजर कर रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है लेट्स से, और इसको आप हीट कर रहे हैं तो ये बन गया आपका 51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। तो यहाँ पे भाई साहब आपका 1 ग्राम वाटर था जिसका टेम्परेचर था कितना 50, और आपने इसको हीट करते हुए कहां तक लेकर आए इसका टेम्परेचर 51 तक। ठीक है, सो यू हैव रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ठीक है, सो 1 कैलोरी इज व्हाट हीट पीपल, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितना भाई साहब 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पानी को भाई साहब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट आपको देना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं 1 कैलोरी। क्लियर है, आर वी क्लियर? So 1 calorie is the heat is required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। तो आपके भाई साहब ये सारे देखो, ये खोलता हुआ पानी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये आइस है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, आपने भाई साहब जलाया, इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। लेट्स से दिस इज फायर बर्निंग आल्सो व्हिच हैज गॉट हाई टेम्परेचर्स। तो हाई टेम्परेचर्स और लो टेम्परेचर्स आर कंसर्न्ड विद अ कंपैरिजन। इसको अपन भाई साहब टेम्परेचर के साथ कंपेयर करके बोलते हैं किस बॉडी में कितनी ज्यादा हीट है। ठीक है, ओके, यहां पे आपसे सवाल पूछा है, देखो, हाउ मच ऑफ हीट विल बी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, गिव द आंसर इन कैलोरीज एज वेल एज जूल्स। ठीक है, तो यहां पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, सो यू हैव बीन गिवन मास ऑफ वाटर, ये कितना है 1.5 kg, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 1500 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ वाटर इज 1.5 kg which can be written as 1500 grams। ओके, सो यहां पे मास कितना है, देखो 1.5 kg है, ये हो गया आपका 1500 ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज हाउ मच 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हीट रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर चेंज, हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास ऑफ वाटर कितना है 1500 इंटू 30 कैलोरीज। ठीक है, तो भाई साहब आपका 30 कैलोरीज मतलब आपका हो गया 45,000 कैलोरीज। ठीक है, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है अगर, तो 45,000 कैलोरीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 जूल से, क्योंकि हमको मालूम है कि एक कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है 4.18 जूल्स होती है। ठीक है, सो 45,000 कैलोरीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है 188,100 जूल्स। क्लियर है? If the temperature of water changes by 10 degree centigrade on giving 300 calories of heat, what is the mass of water? ठीक है, अभी देखो अमाउंट ऑफ हीट गिवन कितना है 300 कैलोरीज, चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई साहब 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, सो मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस मच, 300 कैलोरीज इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू 10, तो मास ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 ग्राम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो व्हाट इज हीट, हीट एनर्जी जो है वो आपका ये क्या है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू कैलोरीज ऑफ हीट, या अपन बोल सकते हैं मास इनटू जूल्स। ठीक है, मास इनटू जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो आपका ये 10 इज इक्वल टू 300 कैलोरीज। ओके ओके ओके, सोर्सेज ऑफ हीट, अभी हम देखते हैं भाई साहब सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हीट तो हमारा सन है, सन के वजह से भाई साहब
आपके प्लांट्स को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिलती है, हमको प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस इन दिस सेंटर। तो आपका ये जो सन है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, देयर इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कांस्टेंट भाई साहब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्ली फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्ली, ठीक है, जनरेटिंग हीट इन द प्रोसेस। तो हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करेगा, दो हाइड्रोजन कंबाइन करके भाई साहब क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे, ठीक है। सो द हाइड्रोजन्स विल कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्ली, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्ली फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्ली जनरेटिंग हीट इन द प्रोसेस। इससे काफी सारा हीट जनरेट होगा। सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो काफी सारा जो हीट जनरेट होगा ये आपके लाइट और हीट, सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो ये लाइट एंड हीट होकर रिसीव होती है, ठीक है। अर्थ, एज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाई, द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट। अर्थ भी भाई साहब, द हीट इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। इस हीट को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। एज द टेम्परेचर द सेंटर ऑफ अर्थ इज हाई। तो आप कभी अगर गड्ढा खोदोगे, ठीक है, आप अगर बहुत देर अंदर किसी गड्ढे के अंदर जाओगे तो वो गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अर्थ से भी एक हीट जनरेट होता है, और ये जो अर्थ से हीट जनरेट होता है इसको अपन बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स होता है भाई साहब आपका जीईओ, दैट इज अर्थ से जनरेट होता हुआ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, ठीक है, ठीक है। एज द टेम्परेचर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाई, द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट। This heat is called geothermal energy. Chemical energy, when fuels like wood, coal, petrol burn, there is a chemical reaction between the fuel and oxygen. Heat is generated. आप भाई साहब किसी गाड़ी के पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है, अगर ठंडी का मौसम है तो ठीक है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आप पसीने पसीने हो जाओगे, है ना। गाड़ी से जो आपका फ्यूल बर्न आउट होता है, आप देखोगे एग्जॉस्ट पंप से जो फ्यूल बन रहा है वो कितना गर्म होता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पेट्रोल जल रहा है अंदर, पेट्रोल के जलने से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिसके वजह से गाड़ी चल रही है। तो जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वुड को जलाकर आप एनर्जी इस्तेमाल करो, या पेट्रोलियम को, या गैस को, किसी भी चीज को भाई साहब अगर आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड, ठीक है। आपके घरों में जो गैस है वो क्या है भाई साहब, गैस बर्न हो रहा है, इसीलिए तो हीट प्रोड्यूस हो रही है जिससे आपका खाना बन रहा है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन योर डेली लाइफ you have seen several equipments which produce heat with the help of electricity. Example, electric press. तो अगर आप देखोगे जो प्रेस होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, जो गीजर होता है आपका, ठीक है, जो गीजर होता है घर में, वो भी क्या कर रहा है भाई साहब, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग इट इनटू हीट एनर्जी, और इसी हीट एनर्जी से वाटर हीट अप होता है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है, ठीक है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके ये सारे सोर्स ऑफ हीट हो गए, सोर्सेज ऑफ हीट। अभी हम बात करेंगे भाई साहब एटॉमिक एनर्जी की। A huge amount of heat is produced in a very short time when the nuclei of some elements like uranium, thorium, etc. undergo fission. अभी ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ये एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो सही मायने में इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। दीज आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, these are radioactive elements. Uranium, thorium etc. are known as radioactive elements. अभी इनका क्या होता है भाई साहब, ये ऐसे इनका फिजन होता है। फिजन मतलब समझ लो क्या होता है, अभी समझ लो ये कोई एलिमेंट है, ये भाई साहब अपने आप ही दो में टूट जाएगा, ये आगे चल के और दो में टूटेगा, ठीक है, ये भी आगे चल के और दो में टूटेगा, ठीक है, और ये भाई साहब और दो में टूटेगा, ठीक है। ऐसे भाई साहब आपके फिजन्स होते जाएंगे, फिजन्स होते जाएंगे। सो दिस विल बी अ कंटिन्यूअस फिजन, और हर एक में आपका एनर्जी होगा, हर एक में आपका भाई साहब एनर्जी लिबरेट होगा। एवरी प्रोसेस विल लिबरेट एन एनर्जी, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इसी को अपन बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन द न्यूक्लियर ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा अंडरगो फिजन।
दिस इज यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और आपके जितने भी एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये काम आता है, ठीक है, क्लियर? ओके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, हमारे आजू बाजू के एयर में भी काफी सारा हीट होता है। वी कैन फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट को अगर अपन टच करेंगे तो उससे ही हमको पता चल जाता है कितना गर्म या कितना ठंडा है, ठीक है, क्योंकि ये या तो हमारे स्किन के टेम्परेचर से ज्यादा होगा या तो हमारे स्किन के टेम्परेचर से कम होगा। अगर हमारे स्किन के टेम्परेचर से कोई ऑब्जेक्ट कम है उसका टेम्परेचर तो हमको ठंडी लगेगी, और हमारे स्किन के टेम्परेचर से कोई ज्यादा होगा तो हमको गर्मी लगेगी उस चीज को छूने से, ठीक है। हाउएवर आवर सेंस ऑफ हॉट और कोल्ड इज रिलेटिव, रिलेटिव मतलब डिपेंड करता है हमारे स्किन का टेम्परेचर क्या हुआ है, ठीक है, हमारे स्किन का टेम्परेचर कितना है। ओके, चलिए ये वाला एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे 3 वेसल्स रखे गए हैं, टेक 3 सिमिलर वेसल, वेसल ए, बी एंड सी, ठीक है, क्लियर? वेसल ए इज फिल्ड विथ हॉट वाटर, so this is basically containing hot water. Vessel B is filled with cold water. Put some water from A and B in C. तो थोड़ा बहुत पानी हमने A से और थोड़ा बहुत पानी हमने B से किस में डाला है, C में डाला है, ठीक है। तो some amount of hot water and some amount of cold water from these 2 vessels have been poured into C, ठीक है। Okay, dip your right hand in A, आपने भाई साहब राइट हैंड को A में डाला है, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड को B में, एंड कीप देम इमर्स फॉर 2 to 3 मिनट, 2-3 मिनट तक इसको भाई साहब ऐसे रखो, ठीक है। एक को आपने गर्म पानी में, मतलब एक खौलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो गुनगुना गर्म है भाई साहब, एक को आपने गर्म पानी में डाला, एक को आपने ठंडे पानी में डाला है, कुछ 2-3 मिनट तक, ठीक है। नाउ डिप बोथ द हैंड्स इन सी, व्हाट डू यू फील, अभी दोनों हाथों को भाई साहब इस सी में डालो, ठीक है, व्हाट डू यू फील? Even though both the hands are dipped in water in the same vessel, that is water at the same temperature, your right hand will feel the water to be cold while the left hand will feel to be hot, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ठीक है, देखो समझ लो इसका टेम्परेचर है लेट्स से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन दोनों को मिलाकर 50 + 20 कितना हो जाए, लेट्स से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ठीक है। ओके, जब तुम गर्म पानी से अपने हाथ को उठा के इसमें डाल रहे हो तो तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई साहब, तुमको क्या लगेगा, इसमें ठंडा लगेगा, राइट, बिकॉज इट इज कोल्डर। और जब तुम ठंडे पानी से हाथ को उठाकर इसमें डाल रहे हो, अभी ये 20 का है, ये 35 का है, तो ये इट विल फील वार्म, ठीक है। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपने पहले क्या किया, एक जार में गर्म पानी रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक जार में ठंडा पानी रखा है लेट्स से वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन दोनों से थोड़ा पानी उठाकर इसमें डाल दिया। अभी 50 + 20 कितना होता है, 70 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा, 35 तो लेट्स से इसका एवरेज टेम्परेचर है 35। आपने 2-3 मिनट तक इन दोनों में अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को रखा है, तो जैसे ही इस वाले हाथ को तुम इसमें डालोगे तो तुमको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, और इस वाले हाथ को इसमें डालोगे तो तुमको क्या लगेगा, गर्म लगेगा, क्योंकि तुम भाई साहब तुम्हारा हाथ था 50 पे और तुम आए 35 पे, तो यू विल फील कोल्ड। तुम्हारा हाथ था 20 पे और तुम आए 35 पे, तो यू विल फील हॉट, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर तो सेम है, ठीक है, 35, लेकिन तुमको ये दोनों चीजें इसलिए अनुभव हो रही हैं, द रीजन व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंस in these two reactions is because your hands are coming from different temperatures and they are being immersed in the same temperature, ठीक है। So what is the reason for this? You must have understood from the above activity that we cannot determine the temperature of an object accurately by simply touching it. तो हम टेम्परेचर का आभास सिर्फ, उसको बंद कर दोगे क्या, टच करके ही नहीं समझ सकते, हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सिर्फ टच करके हम नहीं बता सकते कौन कितना हॉट है या कौन कितना कोल्ड है। We cannot just get an indication of the temperature of an object by just touching it, ठीक है। So we have to have a proper device, ठीक है, by simply touching it. Also you may hurt yourself by, अभी हर चीज को अगर आपको देखना ही है कि गर्म है कि ठंडा है, हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा गर्म हो, लोहे का खोलता हुआ आप उसको टच करके अगर फील करने जाएंगे तो भाई साहब हाथ ही जल जाएगा, है ना। So everything cannot be experienced and it can be dangerous as well, ठीक है। So we feel the need of some device for measuring temperature, और जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज प्रिसाइसली नोन एज थर्मोमीटर, ठीक है। सो द डिवाइस विच इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर. So you must have read about thermometer in the previous class. In this lesson you are going to learn about the construction of a thermometer.
ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट क्या होता है? एनर्जी है। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। हीट आपका क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भाई साहब है आपका एनर्जी, और इसका प्रिंसिपल क्या है? ये दिस इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ये भाई साहब हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है भाई साहब? टेम्परेचर है भाई साहब आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना डिग्री वो भाई साहब हॉट है या कोल्ड है, कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रिसाइसली द टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? वी नो दैट अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। द एटम्स इन अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन मोशन। तो जो भी एटम्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी of atoms in a substance is a measure of the heat contained in that substance। किसी भी substance में जो total kinetic energy होता है, ठीक है, it is always a measure, while the temperature of a substance is related to the average kinetic energy of atoms। if the average kinetic energy of atoms in two objects is equal to their temperatures will always be equal, ठीक है। तो आपका एक बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, किसी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होगा भाई साहब? It is basically a representation of average kinetic energy of the atoms, ठीक है। अगर भाई साहब बॉडी के टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है? तो बॉडी के टेम्परेचर को हम अगर समझ लो किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, so what exactly are you measuring? You are measuring the average kinetic energy of the atoms। यहाँ पे भाई साहब कोई बॉडी है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से आपका कोई बॉडी है, ये दिस इज बेसिकली अ बॉडी, और इसमें इतने सारे एटम्स हैं, ठीक है। ये सब गोल 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 ये सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक है। ये जो एटम्स हैं इनकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, इधर भी सभी होगी। इनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है? मोशन, ठीक है। एटम्स जो है भाई साहब मोशन कर रहे हैं, एटम्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो इनका एक मोशन होगा, और इसी मोशन के वजह से इनकी होगी भाई साहब काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होगा उसी के बिना पे होगी आपकी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो अपन इसको देखते हैं भाई साहब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? सो हीट इज बेसिकली heat is connected with energy, and temperature is connected with the degree of hotness or coldness of an object। We know that a substance is made up of atoms। The atoms in a substance are always in motion। तो atoms जो होंगे एक substance में हमेशा motion में रहेंगे। The total kinetic energy of the atoms in a substance is a measure of the heat contained in that substance, while the temperature of a substance is related to the average kinetic energy of atoms। If the average kinetic energy of atoms in two objects is equal, their temperatures will also be equal। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एक बॉडी है ए, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, अगर हम ऐसा बोलें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। इसका मतलब ये होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फॉर ऑल द एटम्स, for all atoms is equal to average kinetic energy of B for all atoms। ठीक है, average kinetic energy of B for all atoms। average kinetic energy of A for all atoms will be equal to average kinetic energy of B for all atoms। If the temperatures of two bodies are equal, it means that their average kinetic energies are equal। ठीक है, clear है? Are we clear on this one people? Okay। So figures A and B show the velocities of atoms in a gas at high and low temperatures। The direction and length of the arrows attached to the atoms show the direction and magnitude of the velocity of these atoms। तो आपका देखो ये ऐसे, मतलब ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। तो समझ लो कोई एटम है, ये ऐसे करता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी जाता रहेगा। सो ये सब मूवमेंट है, इन मूवमेंट्स के वजह से ही हर एक एटम की एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और ऐसे सारे तमाम जितने भी एटम्स होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आपको क्या दे देगा? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ओके।
द वेलोसिटी ऑफ एटम्स इन द गैस एट हायर टेम्परेचर इज लार्जर देन द वेलोसिटी ऑफ एटम्स इन द गैस एट लोअर टेम्परेचर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर भाई साहब समझ लो, अभी हम बोलते हैं कि एक गैस है, ठीक है, गैस एट ए और इसका टेम्परेचर अगर भाई साहब गैस एट बी, समझ लो गैस बी है कोई, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस ए इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ गैस बी, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स ऑफ गैस ए, atoms of gas A is more than average kinetic energy of atoms of gas B। समझ में आता है भाई साहब, ऑफ गैस B, ठीक है, क्लियर है। The velocities of atoms in a solid object are shown by arrows। The atoms in a solid object are tied to one another because the forces acting between them। तो एटम जो है तो टाइड अप है एक दूसरे से, सो दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेसेस, ठीक है, ये भाई साहब आपके प्लेसेस से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। बिकॉज ऑफ द हीट दे ऑसिलेट अराउंड देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो ये कोई एटम है, देखो ये ऐसे ऑसिलेट होगा, या ऐसे भी ऑसिलेट हो सकता है, या ऐसे भी ऑसिलेट हो सकता है, ऐसे भी ऑसिलेट हो सकता है, और इसी ऑसिलेशन के वजह से इसका एक हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही सारे काइनेटिक एनर्जीज को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका टेम्परेचर आता है, ठीक है। हाइयर द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फास्टर इज द वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो बहुत जोर से ऑसिलेशंस हो रही होंगी, ठीक है, सो द ऑसिलेशंस आर गोइंग टू बी हाइयर। इफ एनी सॉलिड हैज अ हाइयर टेम्परेचर द ऑसिलेशन ऑफ द एटम्स इज हाइयर, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भाई साहब आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस, द मास ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मास बी। तो लेट्स से आपका ए का जो मास है वो ट्वाइस दैट ऑफ बी का मास, ठीक है, विच मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन बी। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ठीक है। इवन इफ द टेम्परेचर्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन ए इज द सेम एज दैट इन बी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन ए इज ट्वाइस दैट इन बी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, दिस विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अभी इसको समझो, ठीक है, आपका ए है देखो, ठीक है, ए में मतलब ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादा आपके एटम्स हैं, बी में भाई साहब कम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, देखो ये ए है और ये बी है, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर टी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतने सारों का मास का जो काइनेटिक एनर्जी है, इतने से मास का उतना काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स thus the heat content of A is twice and that of B even though they both have the same temperature, ठीक है। तो हीट कंटेंट ऑफ A आपका B से ट्वाइस पे होगा, ऑल्दो दोनों का सेम टेम्परेचर है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। टेम्परेचर को जब हम मेजर करते हैं तो जनरली दो स्केल्स को यूज करते हैं, एक्चुअली 3 स्केल्स होते हैं आपके, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के आपके जितने भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, एक होता है भाई साहब आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, दिस इज बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है आपका केल्विन, ठीक है। इन चीज़ों को समझ लीजिए भाई साहब, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, ये 3 टेम्परेचर के स्केल्स हैं, ठीक है, ओके। तो अभी अपन अगर ये वाला जो रिलेशनशिप है देखो, अगर कोई सेल्सियस, तो F दैट इज फ़ारेनहाइट -32/9 दिस विल बी इक्वल टू C/5। यहाँ पे F मतलब हो गया आपका क्या, फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर, सो दिस विल बी फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर, ये आपका हो गया भाई साहब फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर। C मतलब क्या हो गया भाई साहब आपका सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, ये हो गया आपका भाई साहब सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, ठीक है। कभी कभी आपको कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ती है, तो एक टेम्परेचर में दूसरे टेम्परेचर में, तो आपको फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहेगा, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज इज F -32/9 इज इक्वल टू C/5। और केल्विन भाई साहब, केल्विन और सेल्सियस में क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू C + 273.15, ठीक है, केल्विन हो जाता है, ये केल्विन स्केल है। इसमें हम देखो, हम हमेशा देखो डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे या डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, लेकिन कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, हम हमेशा केल्विन ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए भाई साहब, केल्विन
तो आपका जो केल्विन का टेम्परेचर होता है ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ठीक है। ओके, जैसे समझो अगर मैं बोल रहा हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? केल्विन में इसका टेम्परेचर हो जाएगा 20 प्लस 273.15, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 293.15 केल्विन में। ये डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे हम, केल्विन में ये टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं भाई साहब -100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा? तो केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी? 273.15 माइनस 100, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 173.15 केल्विन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कुछ नहीं करना है, सेल्सियस के टेम्परेचर को अपने साइन के साथ 273.15 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273.15। सम स्पेसिफिक टेम्परेचर्स आर गिवन इन 3 स्केल्स, ठीक है। अभी जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है भाई साहब? यहाँ पे 212 और यहाँ पे कितना है? 100। करके देख लो भाई साहब, ठीक है। चलो देखते हैं हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपका भाई साहब फॉर्मूला क्या है? F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5, है कि नहीं? ओके, कितना दिया हुआ है? 212, तो 212 माइनस 32 फ़ारेनहाइट की जगह पे लिखा 212 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। तो देयरफॉर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 2 गया 0, 9 10 11 और ये हो गया 180, 180/9 हो गया ये। चलो इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? 180/9 इज इक्वल टू C/5। तो ये हो गया कितना? 20, है कि नहीं? 9 2 ज़ा 18 और ये 20, C/5। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 20 × 5। तो ये कितना हो गया? C की वैल्यू हो गई 100। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी 212 फ़ारेनहाइट है वही आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे 212 आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी केल्विन में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको मालूम है कि भाई साहब केल्विन क्या होता है? सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तुम्हारा सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर है? 100 प्लस 273.15 कर दो तो कितना आ जाएगा? 373.15। ये हो गया। तो आप देखो एक टेम्परेचर से लेकर चले हम 212 फ़ारेनहाइट, उसका हमने सेल्सियस में कन्वर्जन किया, कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका हमने केल्विन में भी कन्वर्जन किया, दैट इज 273.5 केल्विन। डिग्री केल्विन मत लिखना यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी जैसे अगर मैं बोलूं कि चलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसमें से तुमको फ़ारेनहाइट का इक्विवेलेंट निकालना है और केल्विन का। तो पहले केल्विन का निकाल लो भाई साहब। केल्विन क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो ये तो आसान है भाई साहब, आपका डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 100 प्लस 273.15, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 373.15। ये हो गया आपका केल्विन का टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? ये केल्विन कितना हो गया? 373.15 केल्विन। आर बी क्लियर? अभी फ़ारेनहाइट में देखते हैं। फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू C/5। फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू C/5। आर बी क्लियर? तो दिस वन पीपल, हम फ़ारेनहाइट में अभी आपका C का टेम्परेचर कितना है बोलो? 100, और ये कितना है बोलो? 5, ठीक है। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हमको नहीं मालूम, F -32/9, ठीक है। सो आपका F -32 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 100। तो ये कितना हो गया बोलो? 5F माइनस 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 160, दिस इज इक्वल टू 900। तो 5F की वैल्यू कितनी हो गई? 0 6 एंड 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1060/5। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 5 गया 1, 5 2 ज़ा 10। देखो कितना आ गया, देखो फ़ारेनहाइट में इसका कन्वर्जन करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में इसका कन्वर्जन करेंगे तो 373.15। आप किससे स्टार्ट किए थे भाई साहब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज हाउ यू बेसिकली कन्वर्ट द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो ये आपको दिया हुआ है, देखो
आपका कोई भी टेम्परेचर उठाकर चलो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज दैट यू आर गोइंग टू गेट। तो रूम टेम्परेचर आपका जनरली कितना होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप 72 डिग्री फ़ारेनहाइट और 296 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पीपल? हम ओके। हाउ मच टेम्परेचर, ठीक है, हाउ मच विल द टेम्परेचर ऑफ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट बी इन सेल्सियस? तो कर लो भाई साहब, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C बाई 5। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना है 68 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C बाई 5। सो दैट विल बी हाउ मच, 8 से 2 गया 6, 6 से 3 गया 3, तो ये 9 इज इक्वल टू C बाई 5। 9 4 जा 36, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू 5, तो C की वैल्यू भाई साहब हो गई कितनी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अभी केल्विन में अगर हमको चाहिए तो केल्विन में कुछ नहीं करना है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 कर दो, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 20 प्लस 273.15, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 293.15 केल्विन। ये हो गया भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलो यहाँ पे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी द सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भाई साहब सेम टेम्परेचर कब हो जाएगा? मतलब आप देखो यहाँ पे F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C बाई 5। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम ही है तो सेल्सियस की जगह पे फ़ारेनहाइट लिखो या फ़ारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C माइनस 32/9 इज इक्वल टू C बाई 5, है कि नहीं? क्योंकि इधर आपका F और C क्या है, बराबर है, तो F की जगह पे हमने C लिख दिया। यही पूछा ना, देखो एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी द सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम वैल्यू कब हो जाएगी? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम वैल्यू लेट्स से ये हुई, तो इस F की जगह पे क्या लिखा आपने, C माइनस 32/9 इज इक्वल टू C बाई 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5C माइनस 32 इज इक्वल टू 9C। तो ये हो गया आपका 5C माइनस 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 116 इज इक्वल टू 9C। इसको अपन ने अगर इधर ले लिया तो आपका हो गया 9C माइनस 5C इज इक्वल टू माइनस 160। तो ये हो गया आपका 4C इज इक्वल टू माइनस 160। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 40, ठीक है। तो आपके सेल्सियस में ये कितना हो गया भाई साहब, माइनस 40, और फ़ारेनहाइट में भी ये भाई साहब कितना हो गया, माइनस 40, ठीक है। दोनों में भी माइनस 40 में आपको सेम टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके ओके ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस लेटर ऑन, ठीक है। दैट इज थर्मोमीटर। ठीक है, जाइए।